Hello students, I welcome you all to Surya Law Academy online classes, and the topic we are going to deal today with is legal terms, right? So whenever we are starting with any kind of, you can say, a legal enactment or legal book or anything in related to law, there are certain terms which are not used in a very orthodox manner or day to day life, right? और उन words का explanation आपको as it is वहाँ नहीं मिलता, और अगर आप उसको डिक्शनरी में भी रेफर करोगे तो यू विल नॉट फाइंड द वर्ड, बिकॉज दैट स्मॉल वर्ड इज बेसिकली अ होल सेंटेंस और अ कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ. तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यही नहीं समझ पाओगे कि एग्जैक्टली वो किस कंटेक्स्ट में आपसे यहाँ पे बात कर रहे हैं. मैं अभी उन्हीं टर्म्स के साथ डील आउट करूँगी ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ मिले. सेकेंडली, कम्पिटिटिव्स में दीज वर्ड्स आर आस्क्ड फ्रॉम यू लिटरली. They will just give you one word and they'll throw certain options and you have to decipher which one is actually the true meaning of this particular term. So this is a very common you can say practice, and you will find 3 to 4 questions like this in every question paper no matter which you go, right? So let's start with it. Okay, ab initio. The first term I have is ab initio. I'll go alphabetically with you. और याद रखिएगा ये सारी टर्म्स लैटिन हैं, मैक्सिमम लैटिन टर्म्स हैं इसमें. और अगर आपको लैटिन टर्म समझना है तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ वेरी क्लोज टू इंग्लिश. इट्स मोर लाइक संस्कृत एंड हिंदी. तो अगर आप वर्ड्स का मीनिंग इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग देम, इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग देम विद द वर्ड लाइक ab initio, right? Initio is from initial, from the very beginning. Ab means from the very essence of it, right? So ab initio means from the very beginning, right? Something from very beginning, right? For example, a contract with the minor is void ab initio, means from the very beginning of it, it's void, and how it goes further that we'll discuss in the contract. But ab initio means from the very beginning. The company was fraud ab initio. ये कंपनी जब से बनी थी तब से ही ये फ्रॉड थी, from the very beginning. The contract was void ab initio. जब से बना था तब से ही void था, right? So the thing is that from beginning of something, it's coming like that, it's running like that. The next is actionable per se. Action in law means to sue somebody. एक्शन लेने का मतलब लॉ में हमेशा आप समझ जाना कि जुडिशियल मैकेनिज्म को स्टार्ट करने की बात हो रही है या फिर किसी पर्सन को सू करने की बात हो रही है. तो जब एक्शनेबल पर से कहते हैं, पर से मतलब एज इट इज, लाइक समथिंग from the, you can say, from existence of it, right? Like for example, hitting somebody is actionable per se. आप किसी को अगर मारते हो तो वो एक्शन जो है वो as it is actionable है in the court of law. वो जो आपने किसी को मारा है उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं as it is. We don't have to supplement anything with it, right? So if you are hit, for example, divorce is not actionable per se for marriage. No, it's not, because you have to establish a lot of things in order to prove that this marriage is worthy of divorce now. Yeah, this marriage should be divorced now, right? लेकिन when we talk about actionable per se as it is in the general sense, it means something or some conduct, positive or negative, which makes you liable of a criminal proceeding by the virtue of it. As it is वो करना ही काफ़ी था आपके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए. Abusing is actionable per se. ओके, और हिटिंग अ पब्लिक सर्वेंट इज एक्शनेबल पर से. समझ रहे हो, ये वो एक्शंस हैं जो एज इट इज आप इनको प्रोसिक्यूट करवा सकते हो. देन कम्स एक्टस रियस. एक्टस रियस मीन्स द फिजिकल एक्ट और द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्राइम. अगर मैं सोचा कि मुझे मिस्टर ए बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मुझे मिस्टर ए को मार देना चाहिए, ठीक है, सोचने से कोई क्राइम हो गया? नहीं. फिर मैंने सोचा कि आई विल गेट अ गन और वो मैं ऐसे ऐसे अरेंज करूँगी, मिस्टर ए को बुलाऊंगी, फिर मैं वहाँ उन्हें गोली मारूंगी. अभी तक कुछ नहीं हुआ. फिर मैंने क्या किया, मैंने एक सोर्स लगाया और मैंने मिस्टर बी सी डी जो भी थे इनको पकड़ा और कहा कि विल यू अरेंज अ गन फॉर मी. नाउ आई एम स्टार्टिंग टू कमिट द क्राइम. अभी तक मैं सिर्फ क्राइम सोच रही थी, लेकिन उसके बाद आई विल कमिट द crime. So that thing is known as actionable, that thing is known as actus reus, the physical act of a crime.
ठीक है, आपने क्या फिजिकल एक्ट किया और किस इन्वायरमेंट में आपने वो एक्ट किया। मतलब एक 12 साल की बच्ची का रेप हो जाना और एक मान लो 30 ईयर ओल्ड फीमेल का रेप होता है जिसका बॉयफ्रेंड रेप कर रहा है, तो रेप दोनों साइड हो रहा है। 12 साल की बच्ची स्कूल से 30 ईयर ओल्ड फीमेल को उसके बॉयफ्रेंड ने लिव इन रिलेशनशिप में रेप कर लिया, तो यहाँ पे रेप दोनों जगह है। ग्रेविटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, 12 साल की बच्ची की, ठीक है, बिकॉज फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द विक्टिम वॉज वे वीकर देन द अदर विक्टिम, राइट। सो ग्रेविटी कैसे वेरी करती है ऑफेंस की, फिजिकल एक्शन के थ्रू, वो हम एक्टर सीरीज देख के स्टडी करते हैं। उसके बाद है एडहॉक। एडहॉक बेसिकली मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एडहॉक जज मतलब इस एक केस के लिए हमने जज बनाया, ठीक है। तो मान लो कि जैसे कोई जुवेनाइल केस चल रहा है, तो जुवेनाइल केस में वी डोंट ओनली नीड जजेस, वी आल्सो नीड समबडी हु हैज़ यू कैन से सोशल सेंस और समवन हु यू नो हैज़ अ माइंड ऑफ यू कैन से बच्चों की तरफ कुछ, जैसे कोई सोशल वर्कर हो, कोई फीमेल हो वैसे। तो मान लो एक तो जज हमारे पास है, लेकिन एक हमें ऐसे को सोशल वर्कर उसे एक केस के लिए बुला लिया, तो वो क्या बन जाता है, एडहॉक जज। उसे एक पर्पस के लिए उन्हें हमने जज बनाया है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एडहॉक फॉर पर्टिकुलर पर्पस। देन कम्स एड इडम। एड इडम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स, टू बी ऑन द सेम पेज। Right, for example, I tell you that I'll sell you my car. You say that okay, you sell me your car in 5 lakh rupees. I'll say okay, I'll sell you my car in 5 lakh rupees. I have 6 cars. Now, which car am I selling you and which car are you buying? Are we clear on that? No. So there is no addendum in the contract. Okay, addendum का मतलब होता है when you guys are on the same page. So I say you will sell me your hatchback of red color in 5 lakh rupees. Now whatever, like he has 6 cars or 10 cars, there is one hatchback which is of red color और आप मुझे वही बेचोगे, तो क्या हुआ, we both came on the same page. So addendum means meeting of the mind or to be on the same page, right? Then is ad litem. Ad litem. Ad litem simply means referring to a case law. Okay, so I will supposedly this thing comes during when you will be making your memos. जब आप अपने मूड कोर्स में पार्टिसिपेट करते हो, प्रोपोजिशन में मेमोज बनाते हो, तो उसमें आप लोग ऐसे लिखते हो कि लाइक टू रेफर दिस केस, यू विल नॉट से टू रेफर दिस केस एड लिटम केशवानंद भारती केस, रेफरिंग दिस केस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. सो रेफरेंस ऑफ अ केस इज नोन एज एड लिटम. देन वी come as ad valorem. Next is ad valorem means according to the value. Like for example, Mr. A crashed his car into Mr. B's. Now Mr. B will be awarded compensation ad valorem. Means according to the value of the loss Mr. B has suffered, he will be awarded certain damages for the same. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एड वलोरम. मतलब कि इस पर्सन ने जितना लॉस झेला है उसके हिसाब से उसको जो है डैमेजेस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. अगर मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाता है एंड आई वाज ड्राइविंग अ नैनो और मिस्टर बी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही वाज ड्राइविंग सपोजिटली फरारी, तो हम दोनों का एक्सीडेंट सेम है, लॉस किसका ज़्यादा है, जिसकी फरारी टूटी है, बिकॉज दैट द वैल्यू ऑफ दैट कार इज वे हायर देन माई नैनो. सो इन दैट केस दो बोथ आर कार एक्सीडेंट्स, बट वहाँ पे क्योंकि वैल्यू उसकी ज़्यादा है तो एड वलोरम दैट पर्सन विल गेट मोर ऑफ अ कंपनसेशन. ओके, देन कम्स एलिबाय. एलिबाय मीन्स टू बी एल्सवेयर. टू बी एल्सवेयर. ओके, ये टर्म आपको इंग्लिश में भी यूजुअली सुनने को मिल जाती है. इसका मतलब होता है जिस ऑफेंस के लिए आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको हम एक्यूज बना रहे हैं वो सिचुएशन में आप थे ही नहीं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, somebody prosecutes me for killing Mr. B. Supposedly someone prosecutes me for killing Mr. B in Delhi on 6th of January like 2019. And I can show the hotel bills and the reservations that on 6th of January I was in Mumbai. So physically it's not possible for me to commit the offense. Now in this case what I am doing, I am proving my alibi. मैंने उस offense से जो मेरी absence थी उसे प्रूव करना था और उसे कहते हैं to prove the alibi, to be elsewhere. आप पे जो offense लगा है आप उस टाइम पे उस पोजीशन में थे ही नहीं कि आप वो ऑफेंस करते. ओके, देन कम्स
amicus curiae. After alibi we have amicus curiae. Amicus curiae एक wider concept है. It basically means a friend, court's friend. ओके, अ पर्सन हु इज़ अ कोर्ट फ्रेंड. अब कोर्ट का फ्रेंड कौन बनता है? कोर्ट का फ्रेंड वो पर्सन बनता है हु वांट्स टू हेल्प द कोर्ट विद इट्स प्रोसीडिंग विद वन वे और द अदर. इन द सेंस, जब आप पहले व्हेन वी डिड नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एड, उस टाइम पे जो भी पर्सन, जो भी एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट के लिटिगेशंस फाइट करते थे, उन्हें एमिकस क्यूरी कहा जाता था. लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया, ऐसा पर्सन जिसके पास कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विटनेस, we are talking about somebody who is not a party to either of the who's not a party to either side of the cases. वो किसी की पार्टी नहीं है, उसके पास बस स्पेशल इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन कोर्ट को हेल्प कर सकता है, तो वो पर्सन विल बी नोन एज एमिकस क्यूरी. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ केस ऑफ IT एक्ट. ओके, अब IT एक्ट में देर आर अ लॉट ऑफ यू कैन से टेक्निकलिटीज विच द कोर्ट इज नॉट अवेयर अबाउट. ओके, कोर्ट को सबके बारे में तो पता नहीं होता, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में आस्क समबडी टू ज्वाइन देम और देयर मे बी समबडी हु इज एन एक्सपर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो व्हाट विल ही से, ही विल एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू एनलाइटन द कोर्ट और टू टेल द कोर्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाटएवर ही विल डू, he is not charging for that, he is not a party to the case, he is nothing, he is just helping the court to reach the right decision. That person is acting as amicus curiae. Okay, then comes bona vacantia. Bona vacantia या bona vacantia, whatsoever is the pronunciation you can pick. Whenever we mean a bona basically means with no bad intentions, though with no bad, like bona vacantia means a property without. Bona means without, so property without an honor is known as bona vacantia. You can write it down. Bona vacantia means a property without a legal honor. ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसे कोई क्लेम नहीं करता, कोई हार्वेस्ट नहीं करता, कोई कल्टीवेट नहीं करता, कोई रहता नहीं है, वो प्रॉपर्टी जो होती है वो स्टेट को चली जाती है. ठीक है, सो अगर ऐसी प्रॉपर्टी डिटेक्ट होता है जिसे कोई भी इंसान क्लेम नहीं कर रहा या कोई भी इंसान ऑन रिकॉर्ड उसका ऑनर नहीं है, इट इज़ लाइक वेकेंट प्रॉपर्टी विदाउट एन ऑनर, सच प्रॉपर्टी गोज टू द स्टेट और इसे कहते हैं बोना वैकेंसिया. मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ऑनर नहीं था और वो प्रॉपर्टी हमने किसको दे दी, वो प्रॉपर्टी हमने अपने स्टेट को दे दी. ठीक है, देन कम्स केविएट एम्प्टर. केविएट एम्प्टर बहुत कॉमन टर्म है हमारा एंड इट बेसिकली मीन्स बायर बी अवेयर. ओके, although these days after the passing of Consumer Protection Act, buyer be aware बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं रहा है बिकॉज नाउ सेलर बी अवेयर कॉन्सेप्ट शुरू हो गया. बट पहले के टाइम में क्या था, जिस समय टेक्नोलॉजी वॉज नॉट वेरी यू कैन से कॉमन और या ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करती थी. राइट, देयर वॉज नथिंग लाइक कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस मोबाइल इज़ देयर, सो वी हैव दिस मोबाइल और इस मोबाइल के अंदर क्या फंक्शनिंग है मुझे नहीं पता. राइट, ऊपर से ये मोबाइल ऐसा है. पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी. द थिंग्स वर वेरी सिंपल एंड दे वर वेरी यू कैन से नॉन कॉम्प्लिकेटेड, लेस कॉम्प्लिकेटेड बाय नेचर. तो ऐसे में क्या होता था, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको खुद से देख के खरीदना पड़ेगा. अब बाद में बाप नहीं कर सकते, घड़ा है तो घड़ा है, वो घड़ा ऐसा ही है. घड़ा हो गया, बेड हो गया, कपड़ा हो गया, दे वेरी नॉन कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. तो तब तक मार्केट में जो कॉन्सेप्ट चलता था लॉ में, दैट वाज केविएट एम्प्टर, मीन्स लेट द बायर बी अवेयर. अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपको उसके बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है. आप बाद में ये नहीं कह सकते मुझे तो पता नहीं था. ठीक है, आप वो डिफेंस जो है वो ले नहीं पाओगे. राइट, तो दैट थिंग इज नोन एज बायर बी अवेयर. Then the next term is certiorari. The next term is certiorari. Certiorari basically means to certify. और ये एक तरह का रिट होता है. आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ रिट विच इज़ बीइंग गिवन बाय द हाई कोर्ट फॉर द लोअर कोर्ट. मान लो लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड करके कोई जजमेंट दे देता है. ठीक है, अगर लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड करके कोई जजमेंट दे चुका है तो हम हाई कोर्ट को बोलेंगे ये रहा जजमेंट. ठीक है, अब देखो और अब सर्टिफाई करो कि जजमेंट जो है ये राइट जुरिस्डिक्शन में लिया गया है. ठीक है, एंड देन हाई कोर्ट विल सर्टिफाई दैट दिस पर्टिकुलर जजमेंट हैज़ बीन टेकन राइटफुली इन द राइटफुल मैनर. दैट्स इट. ठीक है, तो उसे बोला जाता है सर्टियरी इज मीन टू सर्टिफाई कि जो भी एक्शन लिया गया है, जो भी डिसीजन लिया गया है, इट इज़ टेकन अकॉर्डिंग टू द लॉ. देन इज कॉर्पस डेलिसिटी. कॉर्पस डेलिसिटी. कॉर्पस डेलिसिटी मीन्स
those physical facts which tells about the crime. मतलब जब भी कोई ऑफेंस हुआ है तो एक कुछ फिजिकल फैक्ट्स ऐसे होंगे ज़रूर जो ये डिराइव कर देते हैं कि ये पर्सन जो है, ये जो ऑफेंस है कैसे हुआ होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, यू एंटर इन अ रूम एंड यू सी कि ना पूरे रूम में ब्लड के छींटे हैं, दीवार की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, बाकी रूम में थोड़े थोड़े हैं, और पूरे रूम में ना जैसे ड्रैग करने के निशान हैं. ठीक है, एंड देयर इज़ नथिंग. अब क्या ड्राइव करोगे, उसमें से क्या चीज़ ड्राइव आउट करोगे, क्या हुआ होगा वहाँ पे? आपको ये लगा कि किसी को यहाँ पीटा गया, घसीटा गया है, उसको चोट लगी है बहुत ज़्यादा, और दीवार के पास है जो उसको मार दिया गया बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा खून फैला हुआ है. ठीक है, तो ये क्या है, इसे कहते हैं कॉर्पस डेलिसिटी. मतलब एक फिजिकल एक्ट, फिजिकल कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है ये कैसा है. एक और एग्जाम्पल दूंगी इंटरेस्टिंग सा. सपोजिटली यू फाइंड अ पर्सनस बॉडी लाइंग इन द रूम. ओके, अब एक पर्सन की बॉडी रूम पे गिरी हुई है एंड देयर इज गन शॉट इन हिज हेड. देयर इज अ गन इन हिज राइट हैंड. राइट, ऐसे मार के ऐसे गन गिरी हुई है. पर्सन इज डेड इन एवरीथिंग. देयर इज अ रूम इज ऑल असेंबल्ड. एक नोट लिखा हुआ है लास्ट में, और उस नोट का जो पेन है वो लेफ्ट साइड रखा हुआ है. ओके, जो पानी का ग्लास है बेड का वो भी लेफ़्ट साइड रखा हुआ है. ठीक है, जो मोबाइल का चार्जर है वो भी लेफ़्ट साइड रखा हुआ है, एंड यू कैन से लैपटॉप, हर चीज़ लेफ्टी है. दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ लेफ्टी, बट उसकी गन जो है वो राइट हैंड में है. क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? इज इट अ सुसाइड और इट्स अ होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड. सो कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि आपने बाकी सारे फैक्ट्स देखे, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रूम कैसी है, इस पर्सन के सारे एविडेंस जो है वो लेफ्ट हैंड सजेस्ट करते हैं. वेयर एज he has shot himself with the right hand, which is very unlikely, right? So इसे कहते हैं corpus delicity. physical element क्या present हैं जिसकी वजह से हमें derive out कर सकते हैं that what all facts were there for the commission of the crime. ये कैसे कैसे हुआ होगा. The next terms that we'll be dealing with this like whole chart. Though you can find these terms easily, but just for your reference I have written them down. So the next term is de facto. Okay, the next term that we are dealing with, de facto, that means by the virtue of the fact itself. Okay, like for example, I am born to Mr. A and Mrs. B on like 3rd of November 1989 supposedly. So in that case, de facto I am the legitimate daughter of Mr. A and B. ठीक है, उसके लिए कोई एडिशनल फैक्ट प्रूव करने, कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं है. इफ अ चाइल्ड इज बोर्न टू अ कपल, डी फैक्टो ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द कपल. राइट, तो उसमें कुछ और नहीं, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ फैक्ट. डी ज्यूरे मीन्स बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ. ओके, सो इफ यू अडॉप्ट अ चाइल्ड under the Indian Adoption Act, de jure the child will become a natural child of yours, a natural child of the couple who has adopted the child. ठीक है, वो चीज़ हो जाती है, तो उसे कहते हैं de jure, by the virtue of the law. The earlier was by the virtue of the fact. Then comes de novo. De novo means when something is made new. Okay, for example, by adding all these terms and conditions in the contract, you have de novo change the nature of the contract. मतलब by the novelty, by the newness, you have changed the nature of the contract. That is de novo. Corpus legis. Corpus means body. Legis means law, the body of law. Okay, so whatever enactment is there, whatever is being made, and how that thing is going to affect, that thing is known as corpus legis, means the body of the law. Then dies none. Then comes dies none. That means the day on which legal business is transacted. Like for example, on the very particular day, what really, like for example, on this 26th November to 1980, dies none, the constitution completed. ठीक है, 26 November 1950 is the dies none of the completion of constitution. So that is on the day, right? Then comes adjusdum generis. Adjusdum generis means of the similar nature. Like for example, the legal effect of contract with a juvenile or insane is adjusdum generis vide ab initio.
वो दोनों सेम नेचर के हैं, इसलिए वो दोनों वाइड एब इनिशियो हैं, क्योंकि उनका सिमिलर नेचर है, राइट। या फिर इनैक्टमेंट मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द डॉग्स will be applicable for all other animals as the subject matter is adjustum generis, means वो सारे animals का जो nature है it is just like dogs, so हम उन सबको जो rights में dogs को दिए वो हम उन सबको भी देंगे because same nature है, getting it। तो similar nature of the act या similar nature of anything is known as adjustum generis, okay। Then we talk about estoppel. Estoppel means it is basically a rule of law which prevents a person from backing out from his words once he has given the same. Like for example, you cannot deny the statement you have made once. For example, I ask कि आप ऐसा करो, आप ना like I'm a faculty and I ask you कि आप staff room में जाओ, staff room में जाके you please do one thing that उस ड्रॉर से ये सामान निकाल के ले आओ। अब आप गए क्योंकि मैंने कहा था, और आपने इस ड्रॉर से सामान निकाला एंड यू वर प्रोसिक्यूटेड फॉर लीकिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, या फिर यू वर प्रोसिक्यूटेड ऑफ द ट्रेस पासिंग इनटू द नॉन स्टूडेंट या स्टूडेंट जोन, जो भी आप कह सकते हो, कि उसमें आने के लिए आपको उसके लिए पनिश किया जाता है। सो आपके पास प्रोटेक्शन है मेरे एस्टॉपल का, कि उन्होंने कहा था मैं इसलिए गया, मैं अपने मोटिव से नहीं गया था। नाउ आई ऑन द अदर हैंड कैन नॉट डिनाई फ्रॉम द सेम, क्योंकि मैंने जो आपको बोला उसकी वजह से आपने एक्शन लिया, और क्योंकि आपने एक्शन लिया आपका लॉस हुआ। तो वो जो लॉस हुआ है उस चीज़ को जो मैंने कहा था, जो मैंने स्टेटमेंट दी थी, उसको एस्टॉपल का प्रोटेक्शन मिलेगा एंड दस यू विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम, ओके। देन कम्स एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया मीन्स इन द फेवर ऑफ। आई एम गिविंग माई प्रॉपर्टी ex gratia to Mr. A for the services he has lent to me over the years of his life. End of the story. गिफ्ट दे दिया किसी को, तो गिफ्ट देना क्या हुआ, एक्स ग्रेशिया, कि मैंने मिस्टर ए को ये जो प्रॉपर्टी थी जो थ्रू आउट उन्होंने अपनी लाइफ मुझे सर्व करी है, जो कुछ भी किया है, तो उसके लिए मैं उनको देती हूँ एंड देयर आर नो चार्जेस फॉर द सेम, गेटिंग इट, ओके। देन कम्स एक्स ऑफिशियो, मीन्स बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑफिस दैट यू आर होल्डिंग, okay, that means the office that was like not holding, held, ठीक है। so ex officio chairman, पहले का chairman कौन था, right, उस तरह से ex officio पहले का। then comes ex parte. ex parte means ex officio, then we have ex parte. ex parte basically means in the absence of one party. ex parte means in the absence of one party. फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज होती हैं केस में, लाइक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, राइट। आई एम द प्लेंटिफ, यू आर द डिफेंडेंट। अब हुआ क्या कि आपको समझ गए, आप आए नहीं, आपको फिर समझ गए, आप आए नहीं, फिर आपके घर में पुलिस गई, आप भाग गए हो। अब हो क्या रहा है कि केस इज लिंगरिंग ऑन बिकॉज ऑफ योर एब्सेंस, यू आर इंटेंशनली नॉट कमिंग फॉर द केस, राइट। तो वो जो एब्सेंस है आपकी, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एक्स पार्टे। नाउ द डिसीजन विच आई विल गेट इन माई फेवर इज द एक्स पार्टे डिसीजन बिकॉज यू वर नॉट देयर, सो द जजमेंट विल बी पास्ड। ऐसा नहीं कोर्ट में केस पड़े रहते हैं, अगर सामने वाला भाग जाए तो केस डिसाइड हो जाते हैं और उस डिसीजन को एक्स पार्टे डिसीजन बोला जाता है। सो दैट केस विल बी डिसाइडेड एक्स पार्टे इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, ओके। सो उसे बोला जाता है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग इन एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। उसके बाद है फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब होता है in the proceeding in any case there are some relevant facts which are to be proved or fact in issue which is to be proved. So factum probandum means fact to be proved, relevant fact to be proved, not relevant fact in issue to be proved, ये चीज़ होती है। fact in issue to be proved is factum probandum, relevant fact is factum probanis। मैं समझाती हूँ इन दोनों चीज़ें क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ प्रॉपर्टी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे मैं 10 साल से रह रही हूँ, और क्या होता है कि एक दिन आप आते हो और आप कहते हो कि आई एम द राइटफुल ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये लोग तो यहाँ पे टेनेंट्स थे और इन्होंने क्या किया, इस घर को ऑक्यूपाई कर लिया है, ये इस घर को देते ही नहीं हैं, तो उस चक्कर में आई शुड गेट द प्रॉपर्टी। नाउ द क्वेश्चन इज टू whom दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू, मिस ए और मिस्टर बी। ये प्रॉपर्टी आपकी है या मेरी है, राइट। तो उस केस में प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, इस फैक्टस probendum, that is the fact in issue, that to whom this particular property belongs. Whereas relevant fact,
अब नाउ व्हेन वी आर डिगिंग आउट द फैक्ट्स वी गेट टू नो कि 10 साल पहले तक के जो घर के बिल्स थे, जो भी एंट्रीज थी वो मैंने की हैं और उसके बाद से वो सारी एंट्रीज आपने की हैं, ठीक है। तो दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट कि 10 साल पहले तक की जितनी भी एंट्रीज थी उस घर की मैंने की और उससे पहले भी सारी एंट्रीज मैंने ही की थी और उस घर के सपोजली कंस्ट्रक्शन वगैरह के बिल्स भी हैं मेरे पास, देन ऑल दैट स्टफ, राइट। तो वो क्या बन जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट। सो दोज थिंग्स विल बी फैक्टम प्रोबेनस, whereas to whom this property belongs is factus probendum, ओके। तो जो मेन क्वेश्चन होता है केस का उसे हम कहते हैं फैक्टम प्रोबेंडम, और उस मेन क्वेश्चन को डिसाइड करने के छोटे छोटे रेलेवेंट फैक्ट्स पिक्चर में आ जाते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टम प्रोबेनस, ओके। नेक्स्ट इज फेसिट अकम्प्लाई। फेसिट अकम्प्लाई मीन्स थिंग्स डन and no longer worth arguing against an accomplished act, means ऐसी चीज़ें जो हो चुकी हैं और अब हम उनको फर्दर आर्ग्यू नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ अ पार्टी। तो अगर मान लो कि एक पार्टी जो है वो इट हैज़ एक्सपायर्ड और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं, तो अब हम उनकी डेथ को है हर प्रोसीडिंग में डिसाइड नहीं करेंगे या उनकी डेथ को हम हर प्रोसीडिंग में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज एक प्रोसीडिंग में हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया दैट मिस्टर ए हैज़ डाइड एंड हिज पोजीशन हैज़ बीन टेकन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव सो एंड सो ऑन द प्रोसीडिंग, ठीक है। दैट इज नोन एज फेट अकम्प्लाई, ठीक है। मतलब वो चीज़ें जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं उसको हम ओवर एंड ओवर दोबारा से डिसाइड उस केस में नहीं करेंगे। देन कम्स फॉस पास, या द लास्ट टर्म इज फॉस पास, दैट मीन्स टेकलेस मिस्टेक, ओके। दैट मीन्स लाइक आप ऐसी कोई मिस्टेक कर देते हो या ऐसा कुछ कर देते हो विच इज़ नॉट अ वेरी यू कैन से हाइडिंग, आप बहुत ऑब्वियस मिस्टेक कर रहे हो, लाइक आप ऑब्वियस डिफेमेशन कर दिया, आपने ऑब्वियसली कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाले को डिफेम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से मैं जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट होते हुए मैं लिख देती हूँ दैट दिस मिनिस्टर इज़ अ थीफ, इज़ अ स्काउंड्रल, इज़ अ यू नो करप्ट मिनिस्टर। अब ये स्टेटमेंट्स जो मैंने दी हैं दे स्टैंडिंग विद द फैक्ट, if I cannot prove them I will be prosecuted for the defamation, so this is a kind of false pass if I am not able to prove them। ये इतनी obvious mistake है that I will be caught for it, okay। तो ऐसा कुछ करना या ऐसे कुछ statement देना जो आपको obviously render कर देता है further you can say further offense या फिर further किसी भी proceedings के लिए आपको वो obviously liable ठहराएगा ही ठहराएगा, okay। Then comes fiere nature. Fiere nature means something which is of dangerous nature or wild nature. Like for example, nurturing a mountain cat is fiere nature in the law. आप किसी माउंटेन कैट्स ना नॉर्मल कैट्स नहीं होती, दे आर बिट फ्यूरियस इन नेचर, या फिर मैं शेर बोल लूँ या मैं सांप बोल लूँ, समथिंग लाइक दैट। ऐसी चीज़ें जो वाइल्ड इन नेचर होती हैं एंड नॉट चीज़ें, ऐसे एनिमल जो वाइल्ड बाय नेचर होते हैं, अगर आप उनको नर्चर करते हो तो दैट थिंग कैन बी नोन एज फियर इन नेचर, मीन्स दिस थिंग आर फिरोशियस बाय नेचर, नहीं। अब रिसेंटली क्या हुआ है, पिटबुल हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर द सेम, हमने पिटबुल को उसी डेफिनेशन में रख दिया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फोर्स मेजर और यू कैन से सच सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड वंस कंट्रोल। हम इसे इनएविटेबल भी कह सकते हैं, आप इसके लिख सकते हो इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, सच सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड वन पर्सन's कंट्रोल एंड thus a person cannot get a grip on the same, he cannot regulate the same. This thing is known as force measure. For example, while I was driving on the snow, heavy snowfall started and my car skid because of the ice layer on the road. अब आइस का जो लेयर रोड पे बन जाता है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड माई कंट्रोल एंड देयर वाज नो वेदर फोरकास्ट और व्हाटसोएवर, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी उसकी वजह से कुछ हो जाना, या आप ड्राइव कर रहे थे और कोई अखबार उड़ के आपकी विंडशील्ड पे टकरा गई और उसकी वजह से आप, तो ये चीज़ें या जिन चीज़ों के प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑफिशियो, दैट मीन्स नो लॉन्गर हैविंग द जुरिस्डिक्शन। लाइक
इनिशियली फॉर एग्जाम्पल अ कोर्ट वॉज अवॉर्डेड एवरी मैटर, बट देन व्हाट वी डिड, हमने कंज्यूमर मैटर्स को निकाल के कंज्यूमर फोरम में डाल दिया. सो नाउ सिविल कोर्ट्स आर फंक्शनस ऑफिशियो फॉर द कंज्यूमर मैटर्स. लाइक अब हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं वो कंज्यूमर फोरम के मैटर्स नहीं देखेगी, क्योंकि पहले वो जुरिस्डिक्शन इनके पास थे, लेकिन अब वो जुरिस्डिक्शन निकाल के हमने क्या कर दिया है, वी हैव गिवन दैट जुरिस्डिक्शन टू द अदर, यू कैन से ट्राइब्यूनल. इस तरह से कि पहले वो जुरिस्डिक्शन आपके पास था, लेकिन अब इट इज़ नो लॉन्गर बीइंग हेल्ड बाय यू. ओके, देन वी हैव इन्फार्मा पॉपेरिस. इन्फार्मा पॉपेरिस मीन्स अ पर्सन हु इज़ डेस्टिट्यूट, या एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है. ठीक है, तो इन्फार्मा पॉपेरिस कहाँ पिक्चर में आता है, जहाँ पे हम किसी को लीगल एड दिलवा रहे हैं. ठीक है, या फिर हम किसी पर्सन को यू कैन से ज़्यादा कंपनसेशन दिलवा रहे हैं, फिर कोई कंपनसेशन पे करने की हालत में नहीं है, तो हम वो चीज़ प्रूव कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम इन्फार्मा पॉपेरिस. दैट मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट इन हु इज़ वेरी पुअर और नॉट इन अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन. देन कम्स इन ल्यू ऑफ. Then comes in lieu of. In lieu of means instead of. Okay, instead of one thing we are doing the other thing. So instead of means in lieu of. In lieu of the damages I have caused to you, I'm ready to pay you back in the kind rather than cash. So I can give you my car till the time you get your car fixed. Okay, so in lieu of the damages I have caused, I'm ready to give you, for example, I own a hotel and I give you 1 year membership of the hotel free. In lieu of the damages I have caused. ठीक है, so that thing is known as in lieu of, instead of. Okay, then is impromptu. Impromptu means in the readiness, right? Impromptu of the situation, the court held that this person should be awarded a death penalty. मतलब कोई बहुत बड़ा, जैसे निर्भया केस हुआ था, बहुत बड़ा ऑफेंस हुआ था ना, तो ऐसे ऑफेंस को इम्प्रॉम्प्टू हमने क्या किया, एजुडिकेट किया, एंड वी सेंटेंस दैट पर्सन टू डेथ बिकॉज ऑफ द whatever circumstances, like whatever has happened or whatever is being done. तो उसे कहते हैं impromptu, और you can say in the readiness. ठीक है, like in the reply of it. Dealing with. So the next term we are dealing with is inter alia. Inter alia means along with the other things. That means when we are doing something, like हम कोई भी proceeding करते हैं या हम कोई भी facts की बात करते हैं, तो along with the other things there some things which also come in the picture. Like for example, as the property was questioned, inter alia the possession came also into the consideration. कि प्रॉपर्टी का जब क्वेश्चन आया तो उसके साथ ही साथ इंटर एलिया हमने पोजेशन की भी बात करनी थी कि किसका पोजेशन है, तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी होगी. सो द अदर थिंग अलॉन्ग विद द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी कम्स द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, देन कम्स इंटर से. इंटर से मीन्स अमंग देमसेल्व्स, राइट? As Mr. A and Mr. B are married to, are born to the same parents, they are inter se owners of the same paternal property. ठीक है, तो वो आपस में इंटरेस्टेड हैं, दे आपस में लिंक्ड हैं, तो उसे कहते हैं इंटर से. मतलब कि दो लोग किस तरह से कनेक्टेड हैं, दो लोग या दो फैक्ट्स इंटर से आपस में. Okay, Mr. A has filed the case of harassment on Miss B, and Miss B has filed the case of harassment. So inter say this both are going the opposite, yeah, you can say cross FIR against each other. Inter alia. Okay, then we talk about inter vivos. Inter vivos, that means VIVOS. Inter vivos means between two people. Okay, the contract was signed by inter vivos Mr. A and B. दो लोगों के बीच आपसी सहमति से ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने साइन किया था, तो दैट थिंग इज नोन एज इंटर वायरस बिटवीन टू पीपल. ओके, इंट्रावायरस. इंट्रावायरस मीन्स विद इन द पार. इंट्रावायरस मीन्स एक जो कोर्ट है उसको क्या पार है, एक अथॉरिटी है उसको क्या पार है. सो विद इन द पार क्या एक्ट किया गया है, दैट इज नोन एज इंट्रावायरस. और अल्ट्रावायरस मीन्स बियॉन्ड द पार. आपको जितनी पार दी गई थी, जो ज्यूरिसडिक्शन आपको ग्रांट किया गया था, आप उससे बाहर जाके कुछ कर रहे हो. ठीक है, देन कम्स इन टेरोरम. इन टेरोरम मीन्स इन द ऑर्डर टू कॉज टेरर. ठीक है, सो इट इज़ जस्ट एन एक्ट टू कॉज टेरर. दैट कुड बी लाइक किसी तरह का वार्निंग दे देना, या किसी तरह की र्यूमर बना देना, या कुछ भी ऐसी हरकत करना जिससे लोगों के बीच डर फैले. दैट इज नोन एज इंटर टेरोरम.
Okay, then after interim we have ipso facto. Now the next term is ipso facto, that means by the very fact. ओके, नाउ हमने पहले पढ़ा था डी फैक्टो. डी फैक्टो मीन्स बाय द फैक्ट, राइट. सो डी फैक्टो का मतलब होता है जब कोई चीज लीगली प्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ द फैक्ट. इस्पो फैक्टो मीन्स जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है, दैट्स इट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, as Mr. Bay is living in this house since time immemorial, इस्पो फैक्टो he is the owner of the house, right. So काफी टाइम से यही रह रहे हैं, तो impliedly यही पर्सन जो है वो ऑनर होगा, राइट. तो हमने इस्पो फैक्टो मीन्स ये लीगल प्रूफ की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है सिंपली एक एक्ट, एक फैक्ट जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है. मैरिजेस आर इस्पो फैक्टो प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. वो कब से हैं, क्या नहीं है, वो एग्जिस्ट करती हैं. तो इस्पो फैक्टो मीन्स एक फैक्ट एग्जिस्ट करता है. पर जब डी फैक्टो की बात करते हैं, दैट मीन्स इन द आइज ऑफ लॉ हम कुछ को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है. देन इज जस्ट इन पर्सोनम. जस्ट का मतलब होता है राइट, इन पर्सोनम का मतलब फॉर अ पर्सन. मतलब ये वो राइट्स होते हैं या वो सेट ऑफ राइट्स होते हैं जो एक पर्सन टू पर्सन ट्रेवल करते हैं या एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट एनफोर्स किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक पर्सन साइन होता है, तो हम उस स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, हम किसी और के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं करवाते. तो दैट इज नोन एज जस्ट इन पर्सोना. मीन्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो से एक पर्सन के अगेंस्ट ही एनफोर्स होगा. आप मिस्टर बी या मिस्टर सी को सू नहीं कर सकते उसके लिए. अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए से है तो आई हैव अ राइट अगेंस्ट मिस्टर ए ओनली, ओके. देन जस्ट इन रेम. जस्ट इन रेम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ओके. दैट मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. सो दैट बेसिकली मीन्स अगर मान लो मेरा राइट टू लाइफ है, सो एनी रैंडम पर्सन इन दिस लाइफ, इन दिस अर्थ, इफ हर्ट्स मी, ही इज questioning or he is hurting my right to life. So that right to life is against the whole world. Whereas if I get married to Mr. A, so जो मेरा right to maintenance होगा या right to conjugal rights होगा Mr. A के साथ ही होगा. तो that is my right in personam. Getting it? ऐसे set of right जो एक specific person के साथ है, that is right in personam. Whereas ऐसे rights जो पूरी दुनिया के against stand करते हैं, that is right in rem. That is the right against the whole world. Just non scriptum. ओके, सो जस्ट नॉन स्ट्रिक्टम का मतलब होता है अ लॉ विच हैज़ नॉट बीन रिटन. अ लॉ विच हैज़ नॉट बीन रिटन या फिर एक तरह का कस्टमरी लॉ. जैसे कि शादी कैसे होगी, वो हम लोगों की एस्टैब्लिश्ड है कि शादी होती है, कैसे होती है, वो हमारा एक लॉ है, तो उसे कहते हैं जस्ट नॉन स्क्रिप्टम. वेयरएज जस्ट स्क्रिप्टम का मतलब है जो कि एक लॉ है जो रिटन है, ठीक है. तो रिटन लॉ को हम बोलेंगे जस्ट स्क्रिप्टम और नॉन रिटन लॉ को, कस्टमरी लॉ को बोलेंगे जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, ठीक है. उसके बाद है लेक्स फराई. लेक्स फराई मीन्स लॉ ऑफ द प्लेस वेयर केस हैज़ बीन हेल्ड, ओके. सो दैट बेसिकली मीन्स जिस कंट्री में आपका केस हुआ है उस कंट्री का क्या लॉ है, ठीक है. लेक्स फराई मीन्स लॉ ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, लॉ ऑफ द प्लेस. वेयर एज लेक्स लोकाई मीन्स लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है. सो बेसिकली उस जहाँ पे एक्ट हुआ है वहाँ का क्या लॉ है उसको हम कहते हैं लेक्स लोकाई, और लेक्स फराई में जहाँ पे हमारा केस हुआ है उसका कौन सा लोकेशन है. देन कम्स लिस पेंडेंस मीन्स अ नोटिस ऑफ पेंडिंग सूट और पेंडेंसी ऑफ सूट. अगर मान लो किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है तो हम उस प्रॉपर्टी की फर्दर डीलिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो केस जो है वो लिस्ट पेंडेंस चलता है. मतलब उस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी एक सूट जो है वो चल रही है, उस चीज़ को बोलते हैं लिस्ट पेंडेंस. सो इफ़ अ प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू अ सूट दैट इज नोन एज लिस्ट पेंडेंस, तो हम उस प्रॉपर्टी के ऊपर और कोई एक्शन, उसको कोई ऑनरशिप या उसको और कोई पोजीशन जो है हम नहीं दे सकते. पेंडेंसी चल रही है, जब तक डिवोर्स चल रहा है शादी नहीं हो सकती, पेंडेंसी चल रही है, ठीक है. उसके बाद है लोकस स्टैंडी. लोकस स्टैंडी का मतलब होता है प्लेस टू स्टैंड, नॉट लाइक लिटरली प्लेस टू स्टैंड. लोकस स्टैंडी मीन्स जब आप कोर्ट जाते हो तो अंडर व्हाट राइट यू आर टेकिंग द एक्शन. अब randomly any Tom, Dick and Harry cannot go and take a stand in the law. Okay, locus standi means why this person is able to take an action in the court. Like for example, if Mr. A and C has entered in a contract and C breaks the contract, I am not somebody who can file a suit against them. It's A and C. I don't have a locus standi in this case.
जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन्हीं दोनों दो लोकस स्टैंडी है उस पर्टिकुलर केस में एक्शन लेने का भी, ठीक है। सो लोकस स्टैंडी बेसिकली मीन्स अ प्लेस टू स्टैंड, दैट व्हाट गिव्स यू अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट। देन कम्स मैलाफाइड। मैलाफाइड का मतलब होता है wrongful. मैला मीन्स wrong, फाइड मीन्स intentions. So मैलाफाइड मीन्स wrongful intention. Then comes modus operandi. Modus operandi means the methodology of doing something. कुछ करने का तरीका कैसा होता है, ठीक है। द मॉडस ऑपरेंडी मीन्स बेसिकली किसी भी हम फंक्शनिंग कैसी रखते हैं। इंडियन मॉडस ऑपरेंडी इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट चलेगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट का मॉडस ऑपरेंडी है हम अकॉर्डिंगली देखेंगे दैट हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। देन कम्स मॉडस विवेंडी मीन्स द वे ऑफ लिविंग। मॉडस विवेंडी मीन्स वे ऑफ लिविंग। मोडस ऑपरेंडी मीन्स काम किया कैसे गया, और मोडस विवेंडी मीन्स वे ऑफ लिविंग, हाउ दिस थिंग हैज बीन एग्जिस्टिंग सिंस लॉन्ग। लाइक द मोडस विवेंडी ऑफ इंडियन पीपल आस्क फॉर अ कस्टमरी मैरिज ओनली, दे आर नॉट ओपन टुवर्ड्स द कोर्ट मैरिजेस, ठीक है। तो उसे कहते हैं मोडस विवेंडी, मतलब कैसे आप एक वे ऑफ लिविंग कैसा रहा है और उसके हिसाब से हम लॉज को भी देखते हैं, ठीक है। एंड देन कम्स ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा का मतलब होता है व्हेनेवर देयर इज सूट, व्हेनेवर देयर इज अ केस, तो उस केस को जब डिसाइड किया जाता है तो एक तो आता है हमारे पास जजमेंट, राइट। एक बार एक चीज़ क्या होती है, उस जजमेंट के अलावा भी जज कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बाय द वे सेइंग। ऑबिटर डिक्टा बेसिकली मीन्स बाय द वे सेइंग, मतलब इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द केस बट इट वॉज अ इम्पॉर्टेंट थिंग विच वॉज बीइंग सेड, और हम उस चीज़ को आगे फॉलो करेंगे। एक एग्जाम्पल दूंगी। देयर वाज दिस केस ऑफ अरुणा शाह बग, जहाँ पे हम लोगों ने पहली बार यूथेनेशिया डिमांड किया था, और नेशन वाइड काफ़ी ज़्यादा यू कैन से ये चीज़ पिक्चर में आई थी दैट इफ़ अ पर्सन इज़ इन वेजिटेटिव स्टेट। नाउ दिस अरुणा शाह बग, शी वॉज अ रेप विक्टिम एंड शी स्टेड इन द वेजिटेटिव स्टेट फॉर मोर देन 40 years of her life. तो दैट फीमेल वॉज इन वेजिटेटिव स्टेट फ्रॉम हर अर्ली 20s, 25-24 की थी, when she went through this horrific act of rape. And not exactly rape, it was attempt to rape though, बट उसको इतना लॉस हो गया, इतने ज़्यादा फिजिकल ट्रॉमा उसको सफ़र करना पड़ा उसमें, दैट हर ब्रेन वेंट डेड, she became brain dead because of that particular act. और for rest of her life she stayed like that. In the end years of her life, जब काफ़ी साल बाद journalist visited her for her story, she noticed that इस person की क्या life है, मतलब जिंदा है पर जिंदा नहीं है, ठीक है। तो what she did, she demanded a डेथ पेनल्टी फॉर हर, डेथ पेनल्टी नहीं सॉरी, मर्सी डेथ फॉर हर, दैट इज़ नॉट यूथेनेशिया। तो कोर्ट ने अरुणा शाह बग को जो मर्सी डेथ थी देने से मना कर दिया, बिकॉज दो शी वॉज ब्रेन डेड बट शी हैड सर्टेन साइंस ऑफ लाइफ इन साइड हर, लाइक शी कैन रिकॉग्नाइज स्ट्रेंजर्स, शी कुड स्टिल टेस्ट हर फेवरेट फूड लाइक चिकन सूप दैट शी यूज्ड टू लाइक। तो इस तरह से शी स्टिल हैड अ साइन ऑफ लाइफ इन साइड हर, और उसको देखते हुए कोर्ट ने बोला कि हम इनको यूथेनेशिया नहीं दे सकते। बट अगर ऐसा कोई विक्टिम आता है जो टोटली ब्रेन डेड है, उसका कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं है, उसका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है, एंड डॉक्टर्स हैव डिक्लेयर दैट देयर इज़ नो स्कोप ऑफ हिज इम्प्रूवमेंट व्हाटसोएवर, तो ऐसे पर्सन को यूथेनेशिया दिया जा सकता है। नाउ इन दिस केस अरुणा शाह बग का जो डिसीजन था वो तो नहीं था ना, नहीं मिला, दैट वॉज द मेन डिसीजन, बट उसके अलावा उन्होंने बोला कि इस सिचुएशन में तो नहीं, बट हैड इट बीन द केस, ऐसे 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 होता तो डेथ पेनल्टी सॉरी यूथेनेशिया मिल सकता था। तो ये जो उन्होंने सर्कमस्टांसेस दिए जहाँ पे हम किसी को मर्सी डेथ दे सकते हैं, दो सर्कमस्टांसेस आर बेसिकली यू कैन से बिकम द ऑबिटर डिक्टा। केस में हमने क्वेश्चन नहीं किया था, केस से अलग हमने बात की है, एंड इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर रेफरेंस, तो उसे कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। ऐसी बात जो केस की नहीं है लेकिन उस केस में वाइटल इंपॉर्टेंस की बन जाती है। देन कम्स ऑनस प्रोबेंडी। ऑनस प्रोबेंडी, ONUS PROBANDI. Onus probandi means burden of proof. Onus probandi basically means burden of proof. यहाँ पे आप कोई भी पर्सन होता है, अगर वो कोर्ट जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई से कि मेरे घर पे चोरी हुई है, राइट, सो इट इज़ माई ऑनस प्रोबेंडी टू प्रूव कि मेरे घर में चोरी हुई है। रेंडमली बोल देने से केस शुरू नहीं हो जाएगा,
ओके, सो ओनस प्रोबेंडी बेसिकली मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ, जहाँ पे हम एक पर्सन को बेसिकली ये प्रूफ करना होता है कि वो जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं या जो भी फुटिंग लेके वो कोर्ट में खड़े हैं, दैट फुटिंग स्टैंड्स राइट. ओके, दैट थिंग इज नोन एज ओनस प्रोबेंडी. ओके ओके, देन वी टॉक अबाउट पेरी पेसू. द नेक्स्ट टर्म इज पेरी Passu, P-A-R-I-P-A-S-S-U. That means an equal footing or you can say proportionality. That what does this mean? जब भी हम लोग किसी को कंपनसेशन दिलवाते हैं तो हम विक्टिम का और रॉन्ग डूअर का दोनों का एक फुटिंग देखते हैं. अगर दोनों सेम फुटिंग पे स्टैंड करते हैं, मतलब नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ यू कैन से किसके पास कितना पैसा है, इट्स लाइक ऑन द वर्च्यू किसने कितना लॉस किया है. तो ऐसे सिचुएशन में वी कॉल इट पेरी पेसू. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ रॉन्ग साइड, Mr. B was coming on the right side but at the fast speed. We both were at the fast speed. मैंने डिपर दिया पर उन्होंने देखा नहीं. अब 3 रॉन्ग मैंने किए, 3 रॉन्ग उन्होंने किए, एक्सीडेंट हो गया. हम दोनों इक्वल फुटिंग पे थे in causing the wrong. We were pari passu on committing the wrong, thus no one can claim the compensation. इसे कहते हैं पेरी पेसू. मीन्स दोनों का सेम फुटिंग था, राइट और अगर सेम फुटिंग था तो हम उस केस में दोनों को कंपनसेशन डिनाई कर सकते हैं, बिकॉज अब दोनों ने सिमिलर अमाउंट ऑफ रॉन्ग किया और दोनों ने सिमिलर अमाउंट ऑफ हार्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर इनकर किया. ठीक है, देन वी से पर से. पर से का मतलब होता है यू कैन से बाय इटसेल्फ. पर से बेसिकली मीन्स बाय इटसेल्फ. सो for example, if you are sitting on this chair of a judge, per se you are a judge. Just by something is existing, like that is per se. Per se, for example, I say that she is a thief. I usually per se this is an offending statement, right? So this is per se by itself. This is a बहुत common English term भी है. Then is per curiam. Per curiam means by the court. So the new rule has been made by the court that, for example, exemplary damages will be given in the case of environmental breach. Okay, now in this case per curiam means by the court itself, right? Okay, then comes per inquirium. Per inquirium, and this means because of the lack of care, and this principle is an exception to the doctrine of stare decisis. Right, so basically means per curiam means in the lack of the care, you were supposed to take care of certain things and that was not being done, right? So that means जो हमने negligence का principle पढ़ा है ये उसके लिए stand करता है. Then comes prima facie. Prima facie means on the face of it. Like for example, and there is a case of murder. राइट अब उसमें क्या होता है, मर्डर का केस नहीं, देयर इज अ केस जहाँ पे हमें एक बॉडी मिलती है जो कि पीसेस में कटी हुई है. सो प्राइमा फसाई इट्स अ मर्डर केस. ऑब्वियसली बॉडी खुद तो पीसेस में टूट नहीं जाएगी, राइट इसे कहते हैं प्राइमा फसाई ऑन द फेस ऑफ इट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका कैसे डिवोर्स केस. सो प्राइमा फसाई मेंटेनेंस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द डिवोर्स केस. अगर डिवोर्स है तो मेंटेनेंस तो जाएगा ही जाएगा, एलिमनी या मेंटेनेंस तो होगा ही होगा. प्राइमा फसाई इट हैज़ टू बी देयर. तो इसे कहते हैं बाय द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, राइट. देन वी टॉक अबाउट क्वांटम मेरिट. क्वांटम मेरिट. क्वांटम मेरिट मीन्स हाउ मच या एज मच अ पर्सन डिजर्व्स. जब भी कोई केस होता है तो हम दोनों तरफ के मेरिट्स को इवेल्युएट करते हैं कि किसको कितना कंपनसेशन मिलना बनता है और उसके हिसाब से हम कंपनसेशन जो है अवॉर्ड करते हैं. उसे कहते हैं क्वांटम मेरिट. दैट मीन्स सपोजिटली मिस्टर ए हैं और मिस बी हैं. ठीक है, मिस्टर ए मिस बी और उन्होंने सपोजिटली डिवोर्स केस चल रहा है तो हम देखेंगे किसका कितना कितना केस है. अब सपोजली मिस्टर ए इज अर्निंग गुड, like he earns 1 lakh a month, but Miss B is the one who cheated on him and on those grounds he wants divorce. Now whether she should be the one getting maintenance, जबकि शादी टूटी है उसकी गलती की वजह से, राइट. तो यहाँ पे हम दोनों के मेरिट्स कंसीडर करना और ये देखना कौन कितना डिजर्व करता है, क्योंकि जब भी कोई केस चलता है तो हम मेरिट्स के हिसाब से सामने वाले को कंपनसेशन है जो भी हम अवॉर्ड करना चाहते हैं हम अकॉर्डिंगली ही अवॉर्ड करते हैं. ठीक है, ओके. Then we say quasi. Quasi means semi, half part. Quasi means either half, semi or a part of it. Like
quasi judicial, that means semi judicial, half judicial. For example, if I say the tribunal has been set to decide the water dispute between Himachal and Haryana and Punjab. So वो जो हमने body कंसिस्ट किया, वो ट्राइब्यूनल बनाया, उसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स हैं. दे कैन आस्क फॉर एविडेंसेस रिलेटेड टू द वाटर ट्रिब्यूनल, रिलेटेड टू वाटर डिस्प्यूट. दे कैन आस्क फॉर द विटनेसेस रिलेटेड टू द सेम. दे आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द सेम. बट दे हैव अ लिमिटेड पावर. दे कैन नॉट एडजर्न एनी केस. दे कैन जस्ट एडजर्न वन केस दैट हैज बीन गिवन टू देम. तो उनके पास जुडिशियल पावर्स तो हैं बट लिमिटेड हैं. तो ऐसे क्या बन जाते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडी. दे आर जुडिशियल but for a specific purpose or to a specific limit. For example, कंज्यूमर फोरम. कंज्यूमर फोरम हर वक्त एस्टैब्लिश रहती है, हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश रहती है, बट उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो क्वासी जुडिशियल है. दे आर लिमिटेड. दे कैन नॉट टेक क्रिमिनल मैटर्स. ठीक है, दे कैन नॉट टेक अदर, यू कैन से एनी अदर मैटर बट कंज्यूमर. राइट. सो इसे कहते हैं कंज्यूमर फोरम इज अ क्वासी जुडिशियल फोरम. इस तरह से. उसके बाद है quid pro quo, that means something for something. Very simple. If I'm entering into a contract with you, you have to pay me something back. There has to be quid pro quo. Right? कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आप पे कर रहे हो, आपको उसके बदले अकॉर्डिंगली कुछ पे बैक मिलेगा. That is known as quid pro quo, and that means an action in return of some other action. Then is quo warranto. Quo warranto means in demand of authority. Quo warranto basically means in demand of authority. That means अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं इन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी पोजीशन में कोई एक्शन किया जाता है और हमें लगता है कि वो एक्शन गलत है, तो वी कैन आस्क फॉर द रिट ऑफ क्यो वारंटो कि जो पर्टिकुलर ये एक्शन हुआ है ये एक्शन सही नहीं था, एंड दस दिस एक्शन शुड बी, यू कैन से, प्रूव्ड ऑन एक्शन की, प्रूव्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास ये पावर कहाँ थी. आप बताइए कि आपके पास अंडर व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन दिस थिंग. मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले भी, जैसे कि मान लो प्रधान जी को टेंडर पास हो गया कि आपको 4 किलोमीटर सड़क बनानी है. अब सड़क जो है वो मेन रोड से आई बनी, गांव में थोड़ी अच्छे से बनते प्रधान जी के आंगन में ख़त्म हो गई. ठीक है, तो लुक्स लाइक कि प्रधान जी के आंगन से सड़क जो है वो मेन रोड तक जाती है. तो ये क्या हुआ? अब आपको दिखाना पड़ेगा ऑन पेपर्स दैट द लोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर, जो हमने बोला है दिस पर्टिकुलर रोड, ये आपके आंगन से शुरू होकर रोड तक जाती. शो दैट ऑन पेपर्स, क्योंकि आपके पास रोड बनने से पहले मैप तो बना होगा. दिखाओ उस मैप पे कहाँ था ये चीज़. राइट. क्यों वारंट, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन दिस थिंग. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द लीगल टर्म्स. होप यू हैव understood the concept. Study hard. See you next time.